हाँ Clear? Now, key elements of democratic government, in which we have to start with the other way of participating. No. So tell me, what we have read yesterday. कल हमने पार्टिसिपेशन में क्या क्या पढ़ाया था? बताइए. सर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन पढ़ा दिए हैं सर. सर आप पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेशन इलेक्शन के बारे में बताए थे. इसी में स्टार्ट करना है, फिर से इसी वाले पॉइंट से स्टार्ट करना है. तो ये बताइए, इलेक्शन के बारे में ही बताए थे, पार्टिसिपेशन के बारे में बताए थे, और ये भी बताया कि इंडिया में 5 years का पीरियड रहता है गवर्नमेंट उसमें काम करती है. सर आप उसमें रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बताए थे. Yes sir. So when we are going to talk about this other ways of participating, in which right now, earlier it was also the participation. Right now the other way of participating means by the what are the other ways in which the people going to be participate in the term of election or whatever. So when we talk about the participating, then the most and the important thing is criticize. Criticize बताया था, चुगली करना, आलोचना करना, शिकायत करना. किसकी? गवर्नमेंट की. किसकी? गवर्नमेंट की जो प्रेजेंट. सर क्रिटिसाइज की स्पेलिंग क्या होती है? CRITISCSE. Criticize. ओके सर, थैंक यू सर. Just told her. Criticize. See this. So this is criticize. So in this, the other way we have discussed about the participation, in which the people going to give the vote to another thing. Here, सर क्रिटिसाइज का मीनिंग क्या होता है? री-इलेक्टेड कर देंगे. करना या आलोचना करना, जो भी समझ लीजिए. शिकायत करना है किसकी? The against government. For what? What the government is doing. So the government is doing maybe in the favor or maybe going against of any person. So when the people choose another method, and the another way of participating is going to be criticized. Because all the work which is done by the government is not going to be always right. Some works maybe the people will not found that it is appropriate for that people, means in the welfare of that people. So in this sense, the common people going to tell about the or to criticize. So in the criticize, there are many ways. For example, you can take the example of anything. For example, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है. What is the meaning of electricity? Tell me. What is the meaning of सर electricity? विद्युत, बिजली. Very good. Vidyut. So, in this manner, Mama. the one boy is talking about. Who is talking about? Now, so for example, we have taken the example of electricity. For any government,
or maybe of government of any state, or maybe the central government, if they increase the bill of electricity, and this bill have no reason to increase the electricity bill, means, so in this manner the people are going to criticize that government. For example, we have seen that the prices of crude oil, is going to be increased. But we have seen in the international market or the arena, the crude oil price is going to be what? Going to be slow down, to be decreased. But in the international, the prices of crude oil is going to be decreased. But why? In Indian scenario, when the international prices is going to be decreased, why in India the prices of the crude is going to be increased? So in this sense, the people can go against the government and try to make demonstrations, rallies, signature campaigns, and many more things regarding in this context. Clear? समझा रहे आपको? तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो लिखा है, यहाँ पर आप उसमें पढ़ सकते हैं. प्लीज प्लीज आई एम अगेन सेइंग प्लीज. Some boy after saying many things, but still they are not. So in this, the increase electricity bill and whatever. So in this, the people going to start with the rallies. Dharna Pradarsan, it is also related to the rallies. Signature campaign. Signature campaign. इलेक्ट्रिसिटी के आगे क्या लिखा है? सब बता रहे हैं, ध्यान से देखिए. इलेक्ट्रिसिटी के आगे क्या लिखा है? सिग्नेचर कैंपेन देखिए. तो पहले तो आप लोग चुप हो जाइए. सर इलेक्ट्रिसिटी के आगे क्या लिखा है? ध्यान से देखिए. यहाँ पर तेरी मुस्कुराहट. कौन है ये? कौन है ये? रुकिए मैं पता करता हूँ. रुकिए. सर इंक्रीज मतलब क्या होता है? ना लिसन. इंक्रीज माने बढ़ना होता है, डिक्रीज माने घटना होता है. शायद आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वे अभी भी 6th स्टैंडर्ड में चले गए हैं, पता नहीं. तो कुछ कॉमन चीजों को आपको ही पता करना चाहिए, और ये सब बहुत कॉमन वर्ड है. When we talk about the criticize, I have written already the meaning of that word. Then increase and the decrease you know about. And when we have written about the crude oil is not the new thing. The kerosene or the petrol, the diesel, this is all the part of the crude oil. And when it is going to be refined, it will go in a different order. Then rally होती है, तो बड़े पैमाने पर जो है कि लोगों का जमावड़ा जो होता है, या बहुत सारे लोग जो इकट्ठे होते हैं. तो this thing is related to the rallies. Then the signature campaign is also, for example, you are going to be against with anything, and in this manner you have write something
and the many people are going to be sign on it. So this is related with the signature campaign. Clear? Strikes also, campaign, strikes, and many more things. So these all are the part of other ways of participating. So whether you are going to encourage or discourage the government. So if the government will do in the favor of the people appreciate also. And if the government is not going to do whatever he has done the work, not in the favor of the common people, so the common people go against the government. Clear? So this is the other way of participating. बातें नहीं करेंगे, पहली बात तो रिमूव कराएंगे, को बहुत बच्चों को तो रिमूव कराना ही है. सर मुझे सिग्नेचर कैंपिंग समझ में नहीं आया, एक बार बता दीजिए फिर से. सिग्नेचर कैंपेन का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अपनी क्लास का एग्जांपल समझिए. सिंपल में आपकी क्लास में एक मॉनिटर बन गया, सुन रहे हैं? ठीक है, आपकी क्लास में क्लास कैप्टन है, आपकी क्लास का क्लास कैप्टन है, आप लोग उसे पसंद नहीं करते. ठीक है, पसंद क्यों नहीं करते हैं? वो हमेशा झूठ मूठ का बच्चों को फंसाता है, चुगली करता है और तरह तरह से उनको बीट कराता है. एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ. ठीक है, तो आप सभी बच्चों ने कहा है ये तो बहुत खराब है क्लास कैप्टन, ये तो हमेशा हमें पिटवाने के बारे में ही सोचता है. तो हमें क्या करना है? वी आर गोइंग टू चेंज दिस कैप्टन. सो द वन ऑफ द वी कैन से one boy who is maybe intelligent, and he will write an application, and on the application the others also make the sign, because if every single boy or the girl going to write the application, it is going to be a large pile of applications. So one application many students are make the sign. So the sign, and after collecting the sign with this application, means on the application that there are a number of signs, and this we can say the sign with the application reach to the class teacher. So the class teacher also think and thought about what he has to done. So this is the same manner in which we talk about the signature campaign. Signature is related with dastakhat, hastakshar, and campaign. Campaign is a way. So this is a writing of, we can say, the sign campaign, signature campaign. This यही signature campaign है. प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल सर बताइए, नहीं समझ में आया. आप बाइक चला लेते हैं? नो सर. नो सर. यस सर. आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल पंप पे दो चीजें मिलती हैं. क्या क्या मिलता है आपको? पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल और डीजल मिलता है. ठीक है, डीजल पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल, डीजल पेट्रोल. 4 बार बोलेंगे तो मुझे ज्यादा सुनाई देगा, है ना? बहुत अच्छा. अब इसके बाद और आपको जहाँ पर आप कभी कभार महीने का राशन बंटता है. ठीक है, तो जहाँ राशन बंटता है वहां पर केरोसिन भी मिलता है. ठीक है, तो केरोसिन मिलता है. तो वेदर वी टॉक अबाउट द पेट्रोल, वेदर वी टॉक अबाउट द डीजल, or whether we talk about the kerosene, डीजल. clear all this? So not only this, except these things, there are many things like mobile, grease, and many more things. So there is a process of distillation. एक process होती है distillation की, क्योंकि ये जहां से निकलता है जमीन में से सब एक ही साथ निकलता है, और ये कच्चा होता है, सब एक ही में मिला होता है. इसको क्या करते हैं? इसको
इसको निकालते हैं, उसमें से सबको अलग अलग सेपरेट करते हैं। शिवेश, शिवेश, keep quiet. तुम सो रहे हो कि क्लास ले रहे हो? प्रॉपरली। तो यहाँ पर आज ये तीनों चीजें एक ही प्लेस से निकलती है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें निकलती है, पेट्रोलियम जो जेली होती है, बहुत सारी चीजें, बट यहाँ पर 3 मैंने एग्जांपल। तो ये सारी चीजें एक ही साथ जो ज्वाइन होती है निकलते समय, और ये एक ही में रहती है, इसे क्रूड ऑयल कहते हैं, इसे हिंदी में कहलाता है कच्चा तेल। और उसके बाद इसको रिफाइंड करते हैं। रिफाइंड करने का मतलब कि सबको सेपरेट करते हैं। सबको क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूध से बहुत सारी चीजें बनती है। सिंपल सा है कि जब दूध निकलता है, जब गाय देती है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसको भी डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन में कि अलग अलग तरीके से उसको निकालते हैं। दूध भी निकालते हैं, मक्खन भी निकालते हैं, घी भी निकालते हैं, पॉट निकालते हैं, चीज निकालते हैं, छाछ भी निकालते हैं। छाछ माने कि गांव में जो मट्ठा कहलाता है, ठीक है, तो छाछ कहते हैं। बहुत सारी चीजें, तो उसको क्या करते हैं, अलग अलग प्रोसेस में डिस्टिल करते हैं, अलग अलग तरीके से उसको निकालते हैं। तो लेकिन जब एक ही में रहता है तो क्या है, वो क्रूड है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से उसको निकालते हैं तो रिफाइंड है। समझा गया आपको? यस सर, यस सर, यस सर। Sir. Now Yes. it's okay. So regarding, then after not only this, after this there are many more methods that in which way you are going to participate. For example, right now the print media, electronic media, social media, many medias. When we talk about the medias, you will also read about in the class 7th about the medias. प्रिंट माने कि किताब है, किताब पे लिखा हुआ है, वो प्रिंट मीडिया है। मोबाइल में फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, वो सोशल मीडिया है। फिर से बहुत सारी अलग अलग मीडिया है। तो इन मीडियाज के थ्रू भी आप टीवी में दिखाता हुआ कौन सा मीडिया होता है? ये सारा देखिए, इन सबको मिला के मतलब कई सारे मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, इन सबको मिलाकर एक मीडिया बनता है, वो कहलाता है मास मीडिया। और इस मास मीडिया में भी ये भी वैसे ही है जैसे कि क्या है, जैसे कि क्रूड ऑयल है। इस मास मीडिया में सारे के सारे मीडिया इंक्लूड है। सो वेदर वी टॉक अबाउट द जनरल्स लाइक मैगजीन में लिखते हैं, अखबार छपता है, टीवी न्यूज आता है, तो ये सारे का सारा दिस ऑल बिकम द मास मीडिया पार्ट। क्लियर? So right now it's a very great platform. It's a very big platform on which the people tell about what they are feeling. तो उनको जैसा लगता है उसके अगेंस्ट में, या जैसे भी उसके उसमें फेवर में चाहे डिसफेवर में लोग क्या करते हैं, उसके बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे केसेस हैं। अगर आज के टाइम मास मीडिया नहीं होती तो बहुत सारी चीजों को पहले दब जाती थी, पता नहीं चलता था। तो मास मीडिया के चलते वो चीजें हाईलाइट हो गई हैं। इसलिए कॉमन पीपल बहुत ही जो भी है उनको बेनिफिट भी होता है और बड़े लोग उससे डरते भी हैं। ठीक है ना, कॉमन पीपल को बेनिफिट भी है और बड़े लोग, फॉर एग्जाम्पल यू ऑल नो अबाउट द सुशांत मर्डर केस। तो अगर ये मीडिया पहले आगे अगर आज नहीं होती तो बहुत सारी चीजें पहले दब जाती थी, पता ही नहीं चलता था। But right now the media is also playing the part. So in which how the media is going to play their pivotal role to show the things. Clear? Yes, sir. Yeah. यस सर। देखिए, अब देखिए, तो जो मूवमेंट्स होते हैं इसके थ्रू, इस मीडिया के थ्रू, तो इसमें कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, बिकॉज राइट नाउ वी आर गोइंग टू रिमूव दिस और इरेज दिस। नाउ अदर वे ऑफ पार्टिसिपेशन मीन्स, अब देखिए ध्यान से, नाउ
movements. The many people or the many societies started the movement, maybe to change their social status, to change their economic and the social condition of that specific people. So who are the people? For example, Dalits. Dalit is just a Hindi word. The English word is scheduled caste or scheduled tribe. Those who are broken and those who are suppressed from the very earlier time being. Clear? ऐसा है कि कहीं कुछ बच्चों के यहाँ से आवाज आ रही है. Please tell them to make shut. It will disturb the whole class. Now, see this. Clear? So Dalit. After the Dalit, Adivasi. Adivasi, ST, scheduled tribe. Dalit, SC. You know about this, scheduled caste and scheduled tribe. The another one is women's. Not only women, another also participate in the manner, and these manner are the movements. So whatever they felt from the past period, they are going to tell about their problems in that way. कि किस तरह से अपनी problems को वो दूसरों के सामने बताते हैं. So by that showing the agitation, by showing the confederation, they will show their agitation in front of all. Clear? Now, so, and not only, there are a number of things the people going to show their agitation in front. जैसे गांव में किसी चीज को लेके नहीं होता है, तो प्रधान जो है कोई काम नहीं करता है, तो उस दौरान भी लोग उसके क्या करते हैं, उसके खिलाफ अपना एजिटेशन शो करते हैं. ठीक है? आ रहा है समझ कि नहीं समझ आ रहा है? यस सर. समझ में आ रहा है. शिवांगी सिंह सर एसटी का मीनिंग क्या होता है? बता रहे हैं. यस सर. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर समझ में आ रहा है. देखिए, एक बच्चे ने एसटी का मतलब पूछा है. अब सुन लीजिए. एसटी का फुल फॉर्म हो जाता है शेड्यूल ट्राइब. यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है, ये इंग्लिश में आदिवासी. आदिवासी मीन्स फॉरेस्ट ड्वेलर, जो जंगल में रहते हैं, और जो जंगल में रहने वाले लोग उनको शेड्यूल ट्राइब कहते हैं. और ये शेड्यूल ट्राइब का फुल फॉर्म है. और जो अधिकतर एससी शेड्यूल कास्ट, जो हरिजन जो है, जो कॉमन आदिवासी जो जनरल कास्ट से जो पीछे के लोग हैं, जो जनरल कास्ट में नहीं आते हैं, उसके अलावा बहुत से लोग हैं, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट है, जो दलित है. क्या कह रहे हैं आदिवासी के बारे में? सर आदिवासी कहा जाता है ना. क्या चीज? सर आदिवासी को ट्राइबल्स कहा जाता है. यस यस, ट्राइबल कहा जाता है. यही शेड्यूल ट्राइब भी कहते हैं, उनको ट्राइबल भी कहते हैं. यही ट्राइबल भी. ये सज्जन जाति जिनको कहते हैं. एसटी का फुल फॉर्म बताइए ना. भी कहते हैं. एससी का फुल फॉर्म मतलब शेड्यूल कास्ट. सर नेल्सन मंडेला का डेथ कब हुआ था? डेथ, अब डेथ के बारे में तो नहीं पता है. डेथ आप लोग चेक कर लीजिए नेट पे, या चेक करके बता देंगे आपको. ये मेन मोटो ये नहीं है कि डेथ के बारे में पता करना. मेन मोटो आपका ये होना चाहिए कि व्हाट इज द रोल ऑफ द नेल्सन मंडेला टू गेट दैट डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका. It's all about the date when he was born and when he was. It's just a, ये तो सिंपल सी चीज है कि आपको डेथ मिल जाएगा, डेथ मिल जाएगा, बर्थ मिल जाएगा. लेकिन मेन चीज, what was the role of the Nelson Mandela to achieve the democracy in the South African term? Clear? मेन ये चीज आपको बतानी चाहिए. क्यों? कि उन्होंने क्लियर सर. सर यस
कि उन्होंने किस तरह से अपने टारगेट को अचीव किया। कैसे कि उन्होंने लगभग 28 साल तक जेल में काटे, फ्रॉम 1964 टू 1994। This crucial period, and this 28 years spent on the Robben Island, which is a very hard, you can say hard life, means a very separated life. एक अलग तरीका का आइलैंड था उस पे, और उनके साथ उनके जो साथ और उनके जो कह सकते हैं कि उनके फ्रेंड्स थे, they all were protesting against the white regime. And white people who was oppressing the South African, not only the black, other colored people also. ठीक है, कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में सिर्फ काले लोग नहीं, वहां पर जो यहाँ के जो लोग थे जैसे इंडियन थे, वहां पर जाके बस गए थे, उनको कलर्ड पीपल कहते थे, और वो व्हाइट पीपल जो थे 25% थे, और वो किस तरह से उन लोगों को ऑप्रेस करते थे, सप्रेस करते थे। समझा रहा है? यस सर। एक मैं इस समय नहीं बता पाऊंगा, एक मूवी है नेल्सन मंडेला पर ही है, उसमें उस मूवी में इस तरीके से दिखाया गया है कि आप देख के हैरान होंगे कि उनकी लाइफ बिल्कुल हजार्डियस थी, मतलब दयनीय स्थिति। कौन सी मूवी है? नाम बताइए सर। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आई थिंक से लॉन्ग, एंड इट इज नॉट ओनली द मूवी, it is also the autobiography which is written by the Nelson Mandela, which tell about the description of hardship of the life which he faced. And after still, देखिए ये भी सोचने की बात है कि after still when 1994 the South Africa got the democratic government, so still after this then when the South Africa freed and got the democratic constitution, but still after this the Mandela was afraid. Why afraid? Then earlier the white people done the oppression of the black ones. Right now the Mandela don't want that the right now from that period that the black people will going to dominate these peoples. वे नहीं चाहते थे कि अब काले लोग उनको डोमिनेट करें, और इसके लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और कहा कि नहीं जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब सबको एक साथ बराबर रहना चाहिए। उसके बाद से उनके फ्लैग को देखते हैं तो फ्लैग के अंदर 6 कलर है, और 6 कलर बहुत चीजों को सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, ये इस बुक में नहीं है, मैं अपने से बता रहा हूँ, अब मैं जो जानता हूँ, और आप देखेंगे तो मूवी बहुत अच्छी है वो, जिसमें आपको दिखेगा कि किस तरह से उनके साथ टॉर्चर होता है। ठीक है, तो देखिए ना, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, इसके अलावा ये स्टार्ट करना है, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट जो नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं। हेलो, कोई पॉइंट है? 1994 में क्या हुआ था? 1994 में क्या हुआ था? 1994 में नेल्सन मंडेला जो थे, 1994 में नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आ गए। ठीक है, और ये तभी आए जब यहाँ पर साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म्ड हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हल्का सा जो है देयर इज अ लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट ऑफ साउथ अफ्रीकन टर्म एंड साउथ अफ्रीकन टर्म व्हेन वी टॉक अबाउट द साउथ अफ्रीका। देखिए द इम्पोर्टेंस ऑफ द गांधी जी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट in such a huge and a broad level, and not only a broad level, the people of the India tell about the Bapu, father of India. So the same role
the same role of the Nelson Mandela in South Africa. And he also fought, both the Nelson Mandela also fought against the white people who are also the settlers in the 16th and the 17th centuries. And also in India, the people are going to fight against the colonialism. सर आप Yes. कहिए। नेल्सन मंडेला के बारे में बता रहे हैं, जो इस लेसन में है, जो आपने पढ़ा साउथ अफ्रीका में, कि नेल्सन मंडेला ने किस तरह से, देखिए जैसे कि आपने जब लेसन पढ़ा तो लेसन में क्या पढ़ा कि 10th जून, किसी की बुक में लिखा है 10th जून 1976 को, किसी की बुक में लिखा है 13th अप्रैल 1976 को। क्या है? द हेक्टर पीटरसन वाज shot and dead by the police bullets because they are demanding their own languages which is related with Zulu, and they are demanding that the Zulu language should be what taught in the school. ठीक है? नेशनल मंडेला का हर बताते हैं। मैं कह रहा हूँ कि नेल्सन मंडेला का रोल साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका है ना इसमें? नेल्सन मंडेला क्या नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला एक क्या है? एक लीडर है। नेल्सन मंडेला इज अ लीडर। नेल्सन मंडेला वाज अ लीडर व्हाट ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑफ साउथ अफ्रीका। Who fought for the struggle? Who fought for the struggle that earlier the white minority people oppressing the aboriginal or the black people of South Africa? क्योंकि जितने white settlers थे, जो गोरे लोग थे, ये यहाँ के नहीं थे। 16 या 17 सेंचुरी में इंग्लैंड से आए, यहाँ के बस गए, और यहाँ के बाद जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो यहाँ बसे नहीं, यहाँ पर सिर्फ रहे और चले गए, और वहां पर वो परमानेंटली पूरा शिफ्ट कर गए। ठीक है? ना नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए द गवर्नमेंट क्या करती है, देखिए ध्यान से, ये स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद द गवर्नमेंट समटाइम्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो ट्राई टू take the initiative to solve the problem of 2 or more states. For example, according to this lesson, there is a water dispute. पानी को लेकर झगड़ा है। कहेंगे सर ये पानी को लेकर भी क्या झगड़ा है? पानी को लेकर झगड़ा बहुत तगड़ा है। क्यों है? साउथ में पानी को लेकर झगड़ा बहुत तगड़ा है। किस लिए? क्योंकि जब हम देखिए ज्योग्राफी की हम बात करेंगे, ज्योग्राफी की हम इसमें हल्का सा ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे और हल्का सा एक टर्म पढ़ेंगे। जब हम रिवर्स की बात करते हैं ना, रिवर्स की, ध्यान से देखिए, जब हम रिवर्स की बात करते हैं तो रिवर्स 2 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक पेरेनियल और एक सीजनल। दिख रहा है सबको? यस सर। पेरेनियल रिवर्स जो है इंडिया में नॉर्थ साइड नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है। चलिए दोबारा हम लिखते हैं। रिवर के बारे में जब हम बात करेंगे तो रिवर के बारे में जब हम बात करते हैं, बीच में क्लास और भी हो सकती है। रिवर के बारे में जब बात करते हैं, अब दिख रहा है सर? यस सर। पेरेनियल। अब देखिए, और दूसरी है सीजनल। दिख रहा है? यस सर। यस सर। पेरेनियल रिवर्स जब हम बात करते हैं, जैसे हम लोग का मान के चलिए कि ये जो भी इंडिया का मैप जब देखते हैं, मैं थोड़ा सा ड्राइंग खराब है, तो आप जब नॉर्थ की साइड में देखते हैं तो नॉर्थ की साइड में हिमालयन माउंटेन्स है। ठीक है? तो हिमालय माउंटेन्स का हिम प्लस साले, तो यहाँ से जो रिवर फ्लो आ गया, वो होल ईयर फ्लो करती है। ठीक है? जबकि जो साउथ की रिवर्स है
साउथ की रिवर सीजनल है, रेनी सीजन में हल्का फुल्का फ्लो करती हैं जब बहुत ज्यादा वाटर होता है, ठीक है। तो जो सीजनल रिवर्स है, तो जहाँ सीजनल रिवर्स फ्लो करती हैं साउथ की तरफ फ्लो करती है, ध्यान से बातें नहीं, तो जो सीजनल रिवर जो साउथ की तरफ फ्लो करती है क्योंकि उसमें पानी बहुत कम होता है, तो वहां पर वाटर को बहुत कंजर्व करके यूज करते हैं, ढंग से यूज करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम होता है वो सर साउथ में पानी बहुत ड्रिप इरिगेशन तरीके से होता है, समझ लीजिए पानी बहुत। बट सर वो लोग तो पानी के ही उधर रहते हैं, तो फिर उन लोग को क्यों इतना देखिए करना पानी पड़ता के है? उधर के कौन कहता है कि पानी के उधर रहते हैं? देखिए पानी तो बहुत है, पानी जब आप बात करते हैं, इतना समय नहीं है, पानी जब बात करते हैं तो 75% तो वाटर ही है, लेकिन वो वाटर तो यूजलेस है ना,